expert, Dr. Ganesh Shukla, is already connected with us. Yeah, welcome. Good Sir. morning to all of you. Good morning. Yeah. Good morning and welcome you, sir. Thank you. Good morning to all. सबको शुभ प्रभात. Yeah. Dr. Ganesh Shukla is an assistant professor in Department of Industrial and Production Engineering at Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur. He has decades of experience in teaching and research. He has numbers of research publications in national and international platforms. His areas of research interest are manufacturing strategy, sustainable manufacturing, green manufacturing strategy, industrial engineering, operation management, etc. Now, I would like to invite Dr. Ganesh Shukla, sir, for his session on soft skill development. Over to you, sir. Thank you very much for my brief introduction. And first of all, I would like to extend my warm thanks to Professor M.K. Verma, Honorable Vice Chancellor, CSVTU Bhilai, Professor K.K. Verma, Registrar, CSVTU Bhilai, Dr. N.K. Khare, Principal, Vishwavidyalaya Engineering College, Ambikapur, Principal, Jaspur Polytechnic, and my special thanks to Nirvikar Gautam and other organizations who have considered me as a speaker for this wonderful teacher training program. And I have been assigned the task that is to take the session on the skill development, soft skill development. Okay. Or I have also been instructed to take the sessions in the bilingual, Hindi and English both. I'll try my best to communicate because I'm going to take this session on that soft skills. Soft skills, one of the important and very, I should say that is a one important skill is the communication skill. Then communication is what? Whatever I want to convey to you people, then it should be conveyed properly. I can use any kind of the medium. Anybody can use. Then here I have been informed that कि यहाँ पे हमें हिंदी पे भी वार्तालाप करना है और मैं इसको बहुत ही सहर्ष स्वीकार करते हुए आगे बढ़ूंगा क्योंकि मेरे वार्तालाप का मेरे इस लेक्चर का उद्देश्य ये है कि जो भी हम इसमें सीखें उसका जो इम्पैक्ट हो आप पार्टिसिपेंट्स पे, वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप के होंगे, डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, पॉलिटेक्निक्स कॉलेज के हैं, तो हेट्रोजीनिटी है और जो ये कॉमन टॉपिक है जो इसमें मैं लेकर चल रहा हूँ. एक मैंने मैसेज भी देखा कि हिंदी में ही बोलना है तो मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगा और मेरा उद्देश्य ये है कि जितना ज्यादा हम हिंदी में बोलेंगे क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव ही ये है. First, we must have in our mind who are going to listen you, who are the target audience, and क्या उनका मीडियम है, how they would be in which language they would be comfortable. Then we should adopt that language. Then here I'll try my best to give my speech on lecture on the Hindi. तो मैं पुनः सभी का अपने इस लेक्चर पे सबका हृदय स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं ऑर्गेनाइजर्स को जो मुझे इस लिए चुना और आज मुझे मौका दिया. तो मेरा जो आज का प्रेजेंटेशन है तो मुझे स्क्रीन शेयर करने दिया जाए. 1 मिनट अलाउ करिए कि मैं एक स्क्रीन अपना शेयर कर सकूं. मैं आप सभी को एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मैं आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? यस सुन रहे हैं ओके, बहुत अच्छा लग रहा है. ओके, थैंक यू. अगर कभी ऐसा लगे कि डिस्कनेक्ट हो गए क्योंकि ये जो हमारे ऑनलाइन आभासी माध्यम का एक जो ड्रॉबैक है, कभी कभी डिस्कनेक्ट होने के बाद भी जो आपका वक्ता है वो बोलते रहता है और जो श्रोता है उनको पता नहीं चल पाता, वक्ता को पता नहीं चल पाता श्रोता सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं. तो अगर ऐसा हो क्योंकि ड्यू टू द ग्लिचेस, टेक्निकल ग्लिचेस जो है बियॉन्ड द कंट्रोल है और उसके कारण अगर होगा तो आप मुझे सूचित करिएगा तो मैं पुनः रिकनेक्ट करूंगा और होपफुली कि हमारा ये सेशन 2 वे हो और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप सभी लोग आप लिख सकते हैं और लास्ट में हम उस क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, आपके जो क्वेरीज होंगे. तो हम आज यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे है. तो मैं आपको सबसे पहले स्किल मतलब कौशल, सॉफ्ट मतलब और हार्ड स्किल्स 2 टाइप की होती है, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इसकी शुरुआत करूंगा. आप लोगों ने प्रायः ऑब्जर्व किया होगा, यू माइट हैव सीन दैट देयर आर द 2 डॉक्टर्स इन अ सिटी. ठीक है, 2 डॉक्टर एक ही शहर में अपना प्रैक्टिस करते हैं और एक डॉक्टर, दोनों डॉक्टर का जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन है सेम
कह सकते हैं, सपोज वी कैन से दैट कि दोनों एम्स दिल्ली से पास आउट हैं, दोनों स्पेशलाइज्ड हैं, सेम स्पेशलाइजेशन है दोनों के पास। सोचिए दोनों एमडी हैं एम्स दिल्ली से। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर एक्स और डॉक्टर वाई, डॉक्टर एक्स के पास जो पेशेंट की भीड़ होगी वो ज्यादा होगी, डॉक्टर वाई के पास प्राय आप पाएंगे एक डॉक्टर ऐसा होगा जिसके पास जो मरीज होंगे वो कम जाते हैं। उसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि दोनों वेल क्वालिफाइड, दोनों सेम संस्था से पढ़े हुए, लेकिन मरीजों की संख्या एक डॉक्टर के पास ज्यादा, एक डॉक्टर के पास कम। और स्किल मतलब हार्ड स्किल मतलब दोनों के पास टेक्निकल नॉलेज बोल सकते हैं, मेडिसिन का जो नॉलेज है, दोनों ने सेम डिग्री प्राप्त की है, एक संस्था से प्राप्त की है, और दोनों का जो लेवल है हार्ड स्किल का लेवल है। हार्ड स्किल्स क्या होती हैं? आपकी एजुकेशंस, आपकी डिग्रीज, आपकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स, आपका नॉलेज टू सॉल्व दी समथिंग, तो वो हार्ड स्किल है। सॉफ्ट स्किल क्या है? आपका इंटरपर्सनल बिहेवियर, आप लोगों से कैसा बात करते हैं, आप लोगों के भीड़ में कैसे काम करते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं। आप पसंद करना मीन्स आपको आप में ऐसे क्या गुण हो जो डॉक्टर एक्स के पास ज्यादा पेशेंट जा रहे हैं डॉक्टर वाई से। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किसके कारण होता है? सॉफ्ट स्किल्स के कारण। सॉफ्ट स्किल ही ये इस प्रकार की जो डिफरेंस क्रिएट करता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने डॉक्टर से स्टार्ट किया। हम हर संस्था में जहां पे भी हम और आप काम कर रहे हैं, वेयर एवर वी आर वर्किंग, ओके, देन you might have observed that there are the set of the people, those are very good in communication, those are very good in a team. If they work in a team, then they are very good performer. But on the other hand, you might have observed that there are the people, those are not able to work in a team. Those are not able to communicate their thoughts to properly to their students. Suppose being a teacher, if I say that I'm not good in front of the students, I'm not able to communicate my lectures to the students properly, I'm not behaving good, okay, then the difference is due to only the soft skills, okay। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे कॉमन सॉफ्ट स्किल्स हैं। मेरी स्लाइड आप लोग को दिख रही है कि कोई एक कंफर्म करें? स्लाइड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जी जी सर, दिख रही है सर। ओके ओके, थैंक यू। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है मैं इस तरीके से कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले मैं सॉफ्ट स्किल्स को आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, उसकी परिभाषा को बताना चाहूंगा जिसके कारण आप समझ सके। हम सब जानते हैं सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना, उसको इंप्रूव करना कैसे कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, क्यों हम ऐसे हैं, कैसे चेंज करें तो हमारे सॉफ्ट स्किल्स बढ़ेंगे, डेवलप करेंगे। इसलिए जो आज का जो थीम है, सबसे पहले सॉफ्ट स्किल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, देन कॉमन सॉफ्ट स्किल्स के बारे में आपको बताऊंगा। आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, सभी लोग ऑब्जर्व करते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, स्कूल में, अपने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। देन लास्ट वन I'll discuss about, after introducing the types of common soft skills, then I'll tell about the how we can improve, how we can identify where we are lacking. Then we should ask the question from ourselves, क्यों ऐसा मेरे साथ है, क्यों मैं टीम में काम नहीं कर पा रहा हूं, क्यों मैं अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं, क्यों मेरे को लोगों के बीच में मैं अच्छे से नहीं आ पा रहा हूं। तो उसके लिए मैं आपसे बताऊंगा कि आप क्या तरीके अपनाएंगे ताकि आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछ सकें और उसका आंसर ढूंढ सकें। और आंसर जब ढूंढेंगे तो डेफिनेटली सॉफ्ट स्किल्स क्या होंगी, डेवलप होंगी, चेंजेस आएंगे आप में। तो इस तरीके से हम, क्योंकि हार्ड स्किल्स का अपना एक जीवन में एक अलग रोल है और सॉफ्ट स्किल्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा जीवन सॉफ्ट स्किल्स के बेस्ड पे, हार्ड स्किल्स आपके पास कितना भी हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, तो आप अगर अच्छे से एक टीम में काम नहीं कर पाते, आप अपनी बात नहीं बता पाते हैं, तो आपकी वैल्यू, एक ऐसा बंदा जो आपसे 19 होगा टेक्निकल नॉलेज में बट 20 होगा अपने आप के सॉफ्ट स्किल्स में, वो उसका ग्रोथ आप देखेंगे पूरा इंटायरली डिफरेंट होगा। तो इस वे में हम लोग आज अपना प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाते हुए, मैं नाउ let me introduce first what are the soft skills. Sorry for pardon to me, sometimes I'll use the English also, then please bear with me, and I will try to translate this English to Hindi also, I can understand, because I have got this information. Then what is this? Soft skills are the synonym of people skill. This is what people, individual skills है ये। soft skills जो होते हैं हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, ये है ना, इनमें इनको पढ़ाया कम जा सकता है, पढ़ाने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, पढ़ के कोई नहीं सीख पाएगा इसको, आपको वर्क ऑन करना पड़ेगा अपने ऊपर। The term describes those personal attributes that indicate a high level of emotional intelligence.
ओके, हियर मतलब यहाँ पे आपको इंटरपर्सनल स्किल्स और एट्रीब्यूट जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए ही सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। दूसरा है ऑल्सो नोन एज पीपल्स स्किल्स। व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज द पीपल्स, आदमियों का स्किल है ये, इंडिविजुअल का, इंसान का स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल्स रेफर्स टू बोथ इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कैरेक्टर ट्रेट्स दैट एलुडिकेट हाउ अ पर्सन कैन वर्क एंड इंटरैक्ट विथ अदर्स। देखिए इसकी महिमा, इसकी गरिमा और इसकी डेप्थ कितनी ज्यादा है। मतलब ये क्या है आपका इंटरपर्सनल स्किल। मतलब जब आप दो से ज्यादा व्यक्तियों के साथ रहें, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने घर में, आप कैसे बिहेव करना है, आपका कैरेक्टर्स कैसा होगा, इन सब की जो चीजें हैं ये सब सॉफ्ट स्किल्स के पार्ट होते हैं। Soft skills is the ability required and expected from persons for finding a suitable job, its maintenance and promotion. Think about that, give the emphasis. जैसे आप मोस्टली जो अभी हमारे ऑडियंस है, जो हमारे आज श्रोता हैं, वो पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज के टीचर्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर हैं। इस जॉब को पाने के लिए उन्होंने बहुत भरसक मेहनत करके छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्जाम पास किया, सभी ने एग्जाम पास किया, सबकी जॉब लग गई। जॉब लगने का जो एक तरीका, एक रिटन एग्जाम था, वो हार्ड स्किल के ऊपर था। हार्ड स्किल्स मतलब आपके टेक्निकल नॉलेज, आपके एग्जामिनेशन में आपको कैसे लिखना है। उसके बाद आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू हैज सम रोल ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स। उसके बाद जॉब पाने के बाद अब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं, अब आपको पूरी लाइफ अपनी सर्विस करनी है। आप इसको मेंटेन कैसे करना है, आपको प्रमोशन कैसे मिलना है, आपको पीपल के साथ कैसे काम करना है, आपको अपने बॉस के साथ कैसे काम करना है, आपको अपने सबऑर्डिनेट के साथ कैसे काम करना है, आपको छात्र हैं क्लास में ले जाना है तो आपको क्लास कैसी लेनी है। तो इन सब का रोल जो है हार्ड स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स का बहुत अहम रोल है। तो यहाँ पे लॉन्ग लाइफ you must have some skills by which you can achieve something different which cannot be achieved by the person who is lagging in that particular skills. Then in that way you can enhance your life, your professional and personal life. Unlike hard skills which describes a person's technical skill set, क्या होता है आपका हार्ड स्किल्स क्या बताते हैं? टेक्निकल हार्ड स्किल सेट्स को बताते हैं। हियर सॉफ्ट स्किल्स क्या है? स्पेसिफिक टास्क। Soft skills are broadly applicable across job titles and industries. ठीक है, ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स के बेसिक डिफरेंस के बारे में पता चल रहा होगा। It's often said that hard skills will get you an interview, but you need soft skills to get and keep the job. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में बना रहना। मैं सिर्फ जॉब पर्सपेक्टिव में बात नहीं करूंगा, सॉफ्ट स्किल्स का आपके समाज में, आपके परिवार में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ही मतलब कह सकते हैं आप यूनिक एस्पेक्ट्स और इम्पैक्ट है। इसलिए यही सॉफ्ट स्किल्स जो है एक हार्ड स्किल्स प्राप्त करने के बाद आपको किसी दूसरे से अलग बनाती हैं। देन अब हमें जरूरत क्यों है सॉफ्ट स्किल्स की? क्या महत्व है सॉफ्ट स्किल्स का? टू हैंडल इंटरपर्सनल रिलेशंस। आप ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, आपको आपके अपने बॉस के साथ, आपके अपने प्रिंसिपल्स के साथ, आपको अपने कलीग के साथ, सबके साथ आपको मिलजुल कर काम करना है। तो ये सॉफ्ट स्किल्स ही हैं जो आपको उन परिस्थितियों में काम करना सिखाएंगे, कब, कैसे, क्यों, किस लिए, क्या बिहेव करना है, क्या टास्क करना है, किस टीम में काम करना है। अगर आप टीम में हैं तो आपका रोल क्या है उस टीम में, क्या आप टीम में काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी की जो ये क्षमताएं हैं वो सॉफ्ट स्किल्स पे ही डिपेंड करती हैं। टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजंस, the persons who has a good soft skills, then decision making is also one kind of the soft skills. Then always, and in some difficult situations, some people you find that they're afraid to take the decisions, but the persons who are good enough, I can say that the interpersonal skills, good experience and confidence, then they take good decisions, or at least they take the decisions. कम से कम कोई निर्णय तो लेते हैं। ना निर्णय लेने से अच्छा है निर्णय लेना। वो आपके सॉफ्ट स्किल्स और आपके उस पर डिपेंड करता है। टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, जैसे आज मुझे ये काम दिया गया, आज कम्युनिकेशन है, आज मुझे कम्युनिकेट करना है इस लेक्चर के बारे में, और मुझे कहा गया कि मुझे आज इस लैंग्वेज पे भी बोलना है। मुझे मोस्टली जो अपना लेक्चर है वो हिंदी पे रखना है। तो मेरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर पाऊंगा? मेरा टारगेट ऑडियंस जो है वो क्या सुनना चाहता है, किस लैंग्वेज में सुनना चाहता है। तो मेरा कम्युनिकेशन, मुझे बोलना, मुझे लैंग्वेज में बोलना जिस लैंग्वेज में मेरे ऑडियंस चाहती है, वो भी एक मेरा सॉफ्ट स्किल्स का उदाहरण है। दोनों अल्दो आप
को उस विषय पे काम करना होगा। अब टू हैव अ गुड इंप्रेशन, इम्पैक्ट टू गेन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे भी आप देखेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे हम प्रोफेशनली सब लोग हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, हम लोगों के बीच कैसे डिफरेंट अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हमारा काम करने का स्टाइल क्या है, हम कैसे आगे बढ़ते हैं, वो सॉफ्ट स्किल्स के डिफरेंस ही जो है, सॉफ्ट स्किल में ही डिफरेंसेस जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि एक्स वाई से क्यों डिफरेंट है। प्रोफेशनली why organizations should always give more focus to assign the job to X against the Y. Then what creates the differences? Soft skill creates the differences. X has different soft skills. I should say that more soft skills as compared to Y, because X is more confident, X is very good communicator, X is so and so as compared to Y. देन आपके जो बॉस होंगे, आपके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होंगे, वो आपको जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है काम देने का, आपकी क्षमता, आपके सॉफ्ट स्किल्स पे, टेक्निकल स्किल्स तो है ही है, सॉफ्ट स्किल्स की भी क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके कारण ही आप चुने जाते हैं विभिन्न कार्यों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में। आप समाज में भी देखेंगे ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास अलग सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, उसका महत्व अलग होता है। तो ये एक लिस्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स है जो कॉमन पाई जाती है, कुछ लिस्टिंग किया है बेस्ड ऑन माय लिटरेचर, बेस्ड ऑन माय स्टडी, और इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा एक एक करके, है ना, कौन कौन से सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जनरली जो प्रायः देखी जाती हैं और पाई जाती हैं, और अगर नहीं पाई जाती हैं तो उसको हम कैसे इंप्रूव करेंगे, उसके बारे में मैं इन सॉफ्ट स्किल्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। जैसे वर्क एथिक्स, ठीक है, जैसे आप सब लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मैं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, तो मेरा एथिक्स टुवर्ड्स माय ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए? वी शुड बी एथिकल ऑलवेज। अगर हम रिसर्च करते हैं तो आपने सुना होगा रिसर्च के भी एथिक्स हैं, इसी प्रकार हर जगह एथिक्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही आपको डिफरेंट बनाता है अलग लोगों से। वी शुड बी ऑलवेज एथिकल। ये देखिए, प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म इज डिफाइंड बाय हु यू आर। ओके, मतलब आपका प्रोफेशनलिज्म जो होगा वो आप कैसे हैं, आप अंदर से क्या है, आप कैसा सोचते हैं, उस पे डिपेंड करता है। आप पाएंगे, मुझे अब यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल कोट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने सराउंडिंग में आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स को देखते होंगे, सबका अलग अलग लेवल होता है, सब अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को लेते हैं, फैमिलीज को लेते हैं, सबका अलग अलग डिफरेंट है। दैट्स व्हाई देयर इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द वर्क एथिक्स। That is also one kind of the soft skills we should inculcate. If we are lacking behind some of them, then we should work on that so that we can be visualized differently. How others perceive you, what you do, मतलब आप क्या करते हैं, आपके कार्य व्यवहार कैसे हैं, आपको लोग, मतलब आप लोगों के साथ कैसे रहते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करते हैं, आप काम करने के मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अलावा आप लोगों से बात करना, उठना, बैठना, ये सब चीजें आपकी कैसी हैं। ओके, देन हाउ अदर्स परसीव यू, आपको दूसरे, आपके सहकर्मी, आपके सहपाठी, आपके अधिकारी कैसे आपको लेते हैं, आपका इमेज क्या है ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इसके लिए क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, मैं सीधे सीधे बोलता हूं, हम लोग आज शिक्षण संस्थाओं में है, तो अटेंडेंस का इंपॉर्टेंस, वी शुड बी वेरी पंक्चुअल टुवर्ड्स आवर अटेंडेंस एंड ड्यूटी। दैट इज द पार्ट ऑफ वर्क एथिक्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर, है ना, कि हमको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अगर हमारे ऑफिस टाइम 9:30 to 6 है, तो हमको एटलीस्ट अपने ऑफिस टाइम में बिफोर 5 मिनट्स हमको पहुंचना चाहिए, कुछ इमरजेंसीज को छोड़ के। तो ये आपके एक वर्क एथिक्स, आपके एक सॉफ्ट स्किल्स को रिप्रेजेंट करती है। देखते होंगे आप, हर संस्था में एक ऐसा व्यक्ति या 2, 4, 5, 10 व्यक्ति ऐसे, या पूरे 90% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें एक अपनी एक क्षमता होती है कि नहीं, वो टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, उनका एक माइंड सेट है। कुछ ऐसे होते हैं जो उस विषय में सोचते ही नहीं है। यही चीजें डिफरेंस बनाती है। दूसरा जैसे आया अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे लोगों के सामने बिहेव करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वी शुड बी वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। जस्ट इफ आई हैव टू टेक द क्लास, then I cannot wear the t-shirt and shirt. It depends. We should think about that, where we are going. If I'm going for the party, if there is a disco, then I should wear dress which suits in that particular occasion. Then we should be well clothed, we should be well in that way. Attitude, always we must have the attitude has an important role in a life. Okay, we should not think in that way. We should always
अगर मैं सपोज मेरा सबऑर्डिनेट है, I'll ask him to do some work, then always he explain like that. And complaints बहुत होती हैं, सर ये ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा. Then this is the example of the negative attitude. We should take as a challenge and we should start working on that. Then you can say that कि sir, I'm facing this kind of the problem. Then that creates a difference in attitude. Suppose before taking the task, you are trying to convey that this cannot be possible, then that is the example of the negative attitude. And you take the task, accept the task, and now you are progressing in that task, and you might face some issues, some problems. Then you can come and ask to your boss, sir, ये करना चाह रहा था. So that is the positive attitude. I started work, I took as a challenge, and I am proceeding, and I'm facing this problem. Then this is the basic difference between the negative and positive. This is one example. Character also, we should be very good in our organizations, family, जो समाज से, जो लोगों के हित में, जो एक एक्सेप्टेबल चीजें हो, वही हमको ज्यादा से ज्यादा अपने प्रैक्टिस में लानी चाहिए. ऐसे नॉन एक्सेप्टेबल चीजों को हमको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, या फिर बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए. प्रोडक्टिविटी, हम अगर 9:30 आ गए ऑफिस, 6 तक बैठे हैं, हमारा प्रोडक्टिविटी क्या है, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को. तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है इस विषय में आपको सोचना, और हमको सोचना, सबको सोचना चाहिए. क्योंकि मैं प्राय, बिकॉज मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा. बिफोर ज्वाइनिंग टू द एकेडमिक्स, आई वाज वर्किंग फॉर द मल्टीनेशनल कंपनी, and the multinational companies are more focused towards the productivity. In private organizations and government organizations, there are huge difference in the terms of the productivity. That's why we should not we should not think about that कि मेरा बॉस जब बोलेगा तभी मैं काम करूंगा. You should come forward, you should take the initiatives, you should do some productive thing for your organizations as much as you can do for the organizations. Because अगर 10 से 6 या 10 से 4 आप ऑफिस में बैठे हैं, आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और आगे के लिए सोचते रहना चाहिए कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट. Am I audible? Yeah, you are audible, sir, now. Okay, sorry for interruption. Okay, that due to the power interruption, and I was with Wi-Fi of the university, but that lost right now due to the power interruption. Then I switched to my mobile connectivity. Okay, thank you, and sorry for this interruption. Okay, that is beyond the control. Okay, then I was talking about that professionalism. Then how we can define this thing: attendance, appearance. My screen is visible to you? Can you see my screen? No, sir. No, sir. No? नहीं, Okay, नहीं. let me start. No, sir. Let me reach. Yeah, फिर से शेयर करने दीजिए. आप देखिए, अब देखिए, आप दिख रही है? No, sir. थोड़ा सा टाइम दीजिए, शायद दिखे. किसको भी नहीं दिख पा रहा? Please allow me. Yes. Now he has allowed. Yeah, he is allowing. Yes. Now I'll start. Stop. Is it visible now?
please? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Okay, thank you. वर्क एथिक्स बात कर रहे थे, है ना? तो इसके लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप लोग मोस्टली पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टीज हैं, मैं भी आपके बीच का ही एक सदस्य हूँ, और इसलिए इन चीजों को हमको बहुत अपने जीवन में ध्यान रखना है। प्रोडक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। टीम वर्क में क्या होता है, प्रायः हम लोगों ने ये पाया है कि जब किसी को टीम में हमारे, क्योंकि टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी कमेटी होती है, उसमें जो टीम लीडर होता है या जो कोऑर्डिनेटर होता है या कन्वेनर होता है, बहुत सारे जो टीम के सदस्य होते हैं, उसमें से आप प्रायः पाएंगे कि कई लोग फ्री राइडर रहना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं उसका काम में। तो हम क्या होना चाहिए, वो काम एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमारा एक सैद्धांतिक चाहिए, हमारा एक एथिक्स होना चाहिए कि अगर हमको टीम में जो असाइन किया गया उसमें हम कुछ ना कुछ अपनी क्षमता के अनुसार अपने जो टीम है उसमें काम करें, और टीम में जो एक काम करके जो एक रिजल्ट देना है, इंटेंडेड रिजल्ट देना, उसको हम कंट्रीब्यूट करें। तो आप लोग इसमें विचार करिएगा, जो ऐसे भी लोग प्रायः पाए जाते हैं, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक टीम बनती है, उसमें suppose there is a team consisting of 5 people, then you might have seen that 2 people are not contributing too much, 3 are working, 1 is more active. In that way we should balance that thing. We should not avoid the work, we should come forward and do the work. Respect बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके संस्था में जहां कार्यरत हैं, वहां पे आप छोटों को, बड़ों को, सारे लोगों को सम्मान दीजिए। ये भी आपके वर्क का एक वर्क एथिक्स का एक पार्ट है। रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट गिव एंड टेक, है ना। इफ यू गिव देन टेक, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन। अगर सपोज हमारा कोई सहकर्मी है जो हमारे कार्यालय में काम कर रहा है, एमटीएस है, हमको सपोर्ट करते हैं हमारे ऑफिस कार्यालय में, हमारे जो कार्यालय के जो लोग हैं, हमको उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, बातों से, शब्दों से हमें कभी भी ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक मतलब सॉफ्ट स्किल्स। कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेशन, एक दूसरे की सहायता करना, कोऑपरेट करना, है ना, जैसा एक्सपेक्टेड हो वैसा कोऑपरेट करने की जरूरत है। तो ये सारे कुछ हमारे जो गुण हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में सोचिए और काम करना कि आप कहाँ पे हैं, क्या आप ऐसा करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो कब से स्टार्ट करेंगे और क्या करें तो हम इन सब चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो 2 टाइप के वर्क एथिक्स होते हैं। पहला होता है पर्सनल। पर्सनल्स में क्या क्या होते हैं आपके, सिंसियरिटी, रिस्पेक्ट फॉर द जॉब, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सीरियसनेस। देखिए, आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि सिर्फ बात करने के लिए बात हो रही है, तो मैं आप लोगों से, दिस इज माय हम्बल एंड सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द ऑडियंस, इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग दीज सॉफ्ट स्किल्स, देन वी शुड स्टार्ट राइट नाउ। वी शुड बी सिंसियर towards our duty, towards our family, towards our job। जो भी काम मिला है उसमें सिंसियर होइए और अपने जॉब का रिस्पेक्ट करिए, ड्यूटी का रिस्पेक्ट करिए, अपने बॉस का रिस्पेक्ट करिए, जो भी असाइनमेंट मिलता है उसको करिए, उसको बताइए, जो समस्याएं हैं, आपकी वैल्यू अलग होगी। यही सारी चीजें जो है, सॉफ्ट स्किल्स जो है, डिफरेंस क्रिएट करती है। रेगुलरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइम skills, you can say that, which creates the differences. We should be regular wherever we would be. क्लास हमारी अगर 10 बजे है, then I should be punctual. I should reach to take my class at 9:55. और पंक्चुअलिटी मुझे लेना ही चाहिए हमारी क्लास, बाय हुक बाय क्रुक। कैसे भी, किसी भी परिस्थितियों में, बहुत विषम परिस्थितियां हैं तो आप उसको रिशेड्यूल करिए, अपने क्लासेस को लीजिए। सीरियस होना चाहिए, कभी भी मजाक में नहीं होना चाहिए। आपके मतलब आप घर में भी इन बच्चों को, अपने बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं कि कैसे हमको सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना है। बचपन से ही अगर आप उनको ये ट्रेनिंग देंगे तो डेफिनेटली बच्चा जब बड़ा होगा तो अपने आप एक टाइम के साथ ये सारी चीजें उसमें इनकलकेट होंगी, क्योंकि अचानक से सीखी जा नहीं सकने वाली स्किल्स है ये। इसमें ऐसा नहीं है कि पढ़ लोगे, ये सिलेबस है, इसको पास कर लोगे तो आप उसमें वो स्किल्स आपको आ जाएगी, इंजीनियरिंग मिल जाएगी, डिप्लोमा मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीजें हैं। लॉन्ग लाइफ, वी शुड बी वेरी विजिलेंट एंड वी शुड ट्राई टू लर्न दैट थिंग। अब आया नेक्स्ट, स्पेसिफिक टू वर्क सिचुएशंस। अब वर्क सिचुएशंस में क्या क्या वर्क एथिक्स हो सकते हैं? कीपिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। अगर आप ऐसे टीम में हैं, ऐसी मीटिंग में हैं जिसमें आपको बोला गया है कि इसकी बात बाहर नहीं जानी चाहिए, तो हमको उसको पूरा फॉलो करना चाहिए, कोई भी हो। मतलब इवन दो कितना भी अच्छा खास दोस्त हो, अगर आप मीटिंग में है तो उसके डिग्निटी और उसको मेंटेन करना चाहिए कि नो, दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, आई शुड नॉट स्प्रेड आउट। ये हमारा वर्क एथिक्स है एट द लेवल ऑफ
work or organizations. Maintaining cordial relation and clients and agencies. सबसे सौहार्द का वातावरण क्रिएट करिए, किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है. Being prepared to take up new task. हमेशा नया अपने आप को तैयार रखिए नए चैलेंजेस लेने के लिए, नए काम लेने के लिए. तो इस तरीके से आप अपने वर्क एथिक्स को इंप्रूव कर सकते हैं और आपकी पहचान आपके ऑर्गेनाइजेशंस में अलग होगी. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है, पॉजिटिव एटीट्यूड. जैसा कि मैंने आपको बताया, एटीट्यूड दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जैसा मैंने बताया कि मैं करनी है और मैं उसको एक काम बोल रहा था, रिसर्च स्कॉलर है. दो रिसर्च स्कॉलर है मेरे पास. रिसर्च स्कॉलर मैंने जो ऑब्जर्व किया उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक का नेगेटिव एटीट्यूड है. पॉजिटिव एटीट्यूड वाले रिसर्च स्कॉलर से हमेशा बात करता हूं तो क्या करता है, जी सर I'll try my do this exercise, I'll do this experiment, I'll do like that. Then he never just like that कि सर ये this is not possible. The negative side का जो आदमी होगा वो सिर्फ समस्याएं आपको बता, समाधान के बारे में कभी नहीं सोचेगा. पॉजिटिव एटीट्यूड का आदमी जो समस्याओं का समाधान के बारे में भी सोचेगा. तो ये डिफरेंसेस होना चाहिए और हमको पॉजिटिव एटीट्यूड इनकलकेट करना चाहिए, नॉट ओनली वर्किंग. बच्चों में भी हमको ये चीजें धारणाएं लानी चाहिए कि बेटा ये ऐसा कि आप उसमें ऐसा पाएंगे, उनका साथ दीजिए, उनके बारे में बताइए, ठीक है. और हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हैविंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फॉर सेल्फ. ये मत सोचना चाहिए कभी कि मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम. आप अपने आप में रखिए और बताइए, एक्सपेक्टेशन रखिए, मैं करता हूँ, ये बॉस बोला है करना है, मुझे करने की क्षमता होनी चाहिए, मैं सीखूंगा, एक्सप्लोर करूंगा और करने की कोशिश करूंगा और उनको बताऊंगा. तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है. कई लोगों को आपने देखा होगा नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, काम को लेने के पहले ही बता देते हैं काम नहीं हो पाएगा, उसमें घुसे नहीं, जानकारी है नहीं. हमको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, नेगेटिव बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए. तो जो इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड हो, he is the horse of the long run. You can say that. Positive attitude create differences in significant manner. The next, हम आप सब जानते हैं बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, कहां पे हैं हम, किस सिचुएशन पे हैं, कैसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, कहां पे हमारा मीटिंग हो रहा है, कैसी सभा को संबोधित कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे बॉडी लैंग्वेजेस का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी एक सॉफ्ट स्किल्स होती है, धीरे धीरे हमको इस पे काम करना चाहिए और सीखना चाहिए. हम कैसे खड़े हैं, बॉडी लैंग्वेज मीन्स हाउ यू स्टैंड, हाउ यू मूव. आप कैसे खड़े हैं, आप कैसे घूमते हैं, कैसे चलते हैं, हाउ यू अपीयर टू पीपल, आप कैसे अपीयर होते हैं, अपने आप को कैसे दिखाते हैं लोगों के सामने, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को. तो वो भी एक आपका बॉडी लैंग्वेज. हाउ यू लुक एट पीपल, आप आदमी लोगों को कैसे देखते हैं. तो इन सब में भी हमको काम करने की जरूरत है. अगर इन सब में हम काम करेंगे तो डेफिनेटली सिचुएशन बेस्ड हमको अपने बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना पड़ेगा. हाउ यू साउंड, आपको लोग कैसे देखते हैं, आप कैसे मतलब आप कैसे प्रदर्शित होते हैं लोगों के बीच में. तो ये सारी इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से लोग आपको कैलकुलेट कर लेते हैं. हाउ यू स्टैंड, कैसे हमको खड़े होना चाहिए, कुछ टिप्स हैं. ऑलवेज वी शुड स्ट्रेट स्टैंड ऑन बोथ लेग्स, ऐसे टेढ़ा पैर खड़ा करके एक के ऊपर एक पैर करके नहीं खड़े होना चाहिए जब हम किसी की सभा को संबोधित कर रहे हो. कहाँ पे हैं, हमें घर में है, लेजर टाइम में है या किसी ऑफिस मीटिंग में है. तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है. आई थिंक you all might be aware about these things. Just I am giving the glimpse on this so that we can recall that what we should do, what we should not do. Don't lean against anything. Stand where everyone can see you. भीड़ में जब हम खड़े हैं, किसी भी उसको दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो हमको ऐसा होना चाहिए कि हमको सब कोई देख सके. आई टू आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, फेस जो होना चाहिए हमारा ऑडियंस की तरफ होना चाहिए. तो ये बहुत सारे आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है. अगर आपका फेस कॉन्फिडेंस की तरफ है, आप आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बात करते हैं, तो आपका ये क्या है, आपके कॉन्फिडेंस को, कि अगला जो स्पीकर है he or she must have some confidence or knowledge to discuss with the audience. So in this way, these are some tips for the how you stand and how you move. Avoid nervous movements. थके से, डिले से, नर्वसनेस अपने चेहरे पे और मूवमेंट पे नहीं दिखाना चाहिए. डोंट वॉक अप एंड डाउन, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे परेशान होते हुए नहीं दिखना चाहिए कहीं पे भी. ये सब में काम करेंगे, देखेंगे बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स हैं, सक्सेसफुल मैन हैं, उनको कितनी सारी परेशानियां नहीं हो रही है. आपके देश के प्रधानमंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, आप देखिए उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके बड़ी बड़ी समस्याएं आने के बाद भी वो बहुत कम नर्वस दिखते हैं. देश में कितनी, अभी कुछ दिन पहले कितनी देशव्यापी समस्या, विश्वव्यापी समस्या
जो आउटब्रेक हुई, that was the COVID. But the leader, the true leader, or I can say that the persons means how they had handled, and they are handling these situations due to the soft skills only. So hard skills helps to create. Just take an example of your क्रिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वैक्सीन, इन्वेंशन ऑफ द वैक्सीन, है ना। तो हार्ड स्किल्स नॉलेज चाहिए था, लेकिन उसको कन्वर्ट करना, उसको लाना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, सारे प्रशासन शासन ने कितना मिलजुल के पूरा काम किया, और उसके बाद ये चीजें आई। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल्स का रोल इसमें था। कीप योर हैंड डाउन एक्सेप्ट फॉर द गेस्चर, बहुत ज्यादा हाथ मूवमेंट नहीं करना चाहिए, हमेशा हाथ बांध के नहीं खड़े होना चाहिए। अगर आप ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं, इसका मतलब है कि आप अपने आप से कुछ छिपा रहे हैं लोगों के सामने। यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। वी शुड बी ओपन हैंडेड। डोंट forget, scratch, jiggle your legs। बहुत ज्यादा पैर नहीं हिलाना चाहिए, बहुत ज्यादा स्क्रैचिंग नहीं करना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में। तो ये सब चीजें हैं। यूज जेस्चर्स फॉर एम्फेसिस। अगर आप किसी चीज को बताना चाहते हैं तो उसके लिए जेस्चर का भी यूज करिए। दिस इज लाइक दिस, इन दिस वे, then this gives the more weightage to your communication. In that way you can move, body movement helps to give emphasize, yeah, you can say that, to highlight highlight the your means thought process को आप highlight करता है। अगर आप बहुत जोर से, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होना चाहिए, इन सब चीजों पर भी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिस एप्रोप्रिएट जेस्चर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसे जेस्चर्स जो पब्लिक प्लेसेस में ना किए जा सके उसको अवॉइड करना चाहिए, ऐसे जेस्चर्स को नहीं रखना चाहिए। अवॉइड आर्म वेविंग, हमको हाथ बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स है। तो मैं सोचता हूं कि ये टिप्स आप सभी लोगों को पता होंगे। और देखिए जो आखिरी जो टिप्स है, लुक एनर्जेटिक। व्हाई वी शुड बी आवर अपीयरेंस और लुक्स शुड बी एनर्जेटिक। एनर्जी होल्ड्स पीपल अटेंशन, लैक ऑफ एनर्जी पुट्स पीपल टू स्लीप। ओके, क्लास में जब आते हैं, एक शिक्षक होने के नाते ऐसे डल जाना चाहिए, थका सा हुआ नहीं जाना चाहिए। Our face should reflect that sir is full of the energy, he will take the class in energetic way. So in that way, this is a small example। तो बच्चे भी आपको कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। put energy into your eyes, voice and movements। This is also important। what you are going to convey, अगर बहुत धीरे बोलूं तो आपको मजा नहीं आएगा। तो हमारे वॉइस का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। देन नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल। ओके, देन गुड कम्युनिकेशन स्किल। जैसे कि मुझे कहा गया कि आपको हिंदी पे भी बोलना है, तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत ही सही एक विचार है, और मैं अपने विचारों को जो साझा करूं ऐसे माध्यम से करूं कि जिससे कि मेरी जो श्रोता है, जो मेरे ऑडियंस है, उनको इम्पैक्ट हो, उसको समझ में आए। यह इम्पोर्टेंट माध्यम है। कम्युनिकेशन का लैंग्वेज का एक माध्यम है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। Communication skills are always top of the essential skills list in any job advertisement. People with strong communication skills can build relationships from the initial building rapport through to longer term relationship. Listen well and vary their communication to suit the circumstances। बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। सुनने और बोलने दोनों का बहुत महत्व है। एक एग्जांपल बोलूं, जैसे कि हमको भगवान ने सभी लोगों को 2 कान और 1 मुंह दिया हुआ है। हम अपने मुंह का यूज करके, अपनी वाणी का यूज करके हम बोलते हैं, और 2 कान हैं जिसके द्वारा हमें सुना जाता है। तो ऐसा सोचता हूं कि जो ये सिग्निफाइज करते हैं 2 ears, why we have a 2 ears and 1 mouth, then it indicates that we should listen more, twice as compared to speaking। क्योंकि जब हम एक चीज मैं बता चाहूंगा यहाँ पे, जब हम बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, जो मेरा जितना नॉलेज है, जितना मैं जानता हूं, वही आपको मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं। अब ये ऑनलाइन क्लासेस का एक ड्रॉबैक है, मैं ऑडियंस से इंटरैक्टिव सेशन नहीं कर पा रहा हूं, मैं उनसे पूछ नहीं पा रहा हूं, मैं उनके मैं फेस एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा हूं कि उनको एनर्जी लग रही है, समझ पा रहे हैं क्योंकि एक अलग रीडिंग है, वो भी सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट ही है। लेकिन ठीक है, इस समय में विषम परिस्थितियों में हमें एक माध्यम तो है, कम से कम हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो मैं कहाँ बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि mouth and 2 ears, 1 mouth then 2 ears, it signifies that is created by the Almighty God कि we should listen more and tell or speak less। when we speak, then we speak whatever we know। if we'll listen, तो जो मैं सुनूंगा, सपोज मेरा दोस्त ही है, अब मैं अगर उसको नहीं बोलने दूंगा, मैं बक 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 करता रहूंगा, वो नहीं बोल पाएगा। हो सकता है उसका जो नॉलेज हो, जो मैं ना जानता हूं, वो मुझे बताए, तो वैल्यू एडिशन होगा। जो हम बोलते हैं, जैसे आप भी बात करते हैं, तो आपको जितनी जानकारी है आप उतनी बात करते हैं,
लेकिन आप जब सुनने की कोशिश करेंगे अगले को, तो हो सकता है ऐसी चीजें वो आपको बताए, बोले, जो आपको ना पता हो, तो आपका वैल्यू एडिशन होगा। इसलिए सुनने का और बोलने का दोनों का अपना अपना महत्व है। तो वी मस्ट ऑलवेज ट्रीट अदर्स एज वी शुड लाइक अदर्स टू ट्रीट अस। ये तो सबको पता है ना? जैसे आपको जैसा अच्छा लगे वैसे ही दूसरों के साथ चाहिए, दूसरों से उम्मीद करते हैं वैसा ही व्यवहार आप दूसरों से करिए, है ना? तभी आपको मिलेगा वो। बच्चों को अगर आप डांटेंगे तो बड़े होके बच्चा आपको डांटेगा। इसलिए बच्चों को आप सॉफ्ट स्पोकन सिखाएंगे, आपको सॉफ्ट बोलेगा वो। वर्बल एंड नॉन वर्बल मस्ट बी टू द पॉइंट होना चाहिए। हमारी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट कुछ जवाब दे रहा है, तो उसकी जो ट्रेनिंग है बराबर नहीं हुई है। इफ द क्वेश्चन इज व्हाट from where you are, then you should say that I am from the Raipur, Chhattisgarh. ये नहीं बोलना चाहिए कि I am from the a place which is near about Durg and Bhilai, that is called the Raipur. There are the people those who talks in that way. We should avoid this kind of the conversation. Empathetic मतलब we must have some सहानुभूति हमेशा हमारे वार्तालाप में, हमारे सौम्यता हमारी वार्तालाप में होना एक अभिन्न पार्ट है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स को भी हमको ध्यान रखना है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मैं आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या कृपया कोई एक व्यक्ति बताएगा इस विषय में? Yes, sir, you are audible, sir. ओके, थैंक यू। अब मैं आता हूं एक इंपॉर्टेंट चीज में, टैक्टफुल कन्वर्सेशन क्या होना चाहिए। टैक्टफुल जैसे TACTFUL, तो मैं इसको एलॉबरेट करूंगा आप लोगों के लिए और आप इसको समझेंगे कि टैक्टफुल कन्वर्सेशन का मतलब क्या है। टैक्ट मतलब थिंक बिफोर यू स्पीक। T स्टैंड्स थिंक बिफोर स्पीक। आप लोग सहमत होंगे इस बात से? जो सहमत नहीं है, कृपया हमेशा जीवन में थोड़ा सा इस चीज को आप वृद्धि करने की कोशिश कीजिए। कहां पे क्या और क्यों बोलना है, बोलने के पहले सोचिए। एक बार, दो बार, तीन बार थॉट्स दीजिए, तब बोलिए। क्योंकि एक बार बोलते नहीं है, जो आपकी वाणी का जो बाण है वो कभी वापस नहीं आएगा। एक बार चला गया तो इसका और वाणी का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, दुखी भी कर सकता है लोगों को। इसलिए थिंक बिफोर यू स्पीक। Then next, apologize quickly when you blunder. क्षमा मांगना अगर आपसे गलती हुई है, तो कई लोगों में प्रायः मैंने देखा है कि ये वाली हैबिट नहीं होती है। अगर आप ब्लंडर किए हैं, आपने कुछ गलती की, आपने कुछ मिस्टेक किया, तो आप क्षमा मांगना चाहिए आपको। लेकिन अगर दूसरे साइड मैं ये बोलूंगा, ऑन द अदर हैंड, इफ यू डू नॉट रॉन्ग थिंग, देन पोलाइटली यू कैन से दैट आई डिड नॉट डू रॉन्ग, यू आर टेकिंग मी अदर वे, यू आर इंटरप्रेटिंग अदर वे, बट सर मैंने ऐसा नहीं किया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। उसको आप कम्युनिकेट करिए, गैप मत रखिए कहीं पे भी। और अगर गलती हुई है, घर में हो, परिवार में हो, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हो, कलीग से हो, दोस्त से हो, तो हमें उसके लिए सॉरी रखना कहीं से भी गलत नहीं है। देन C इज कन्वर्स डोंट कम्पीट। ओके, मतलब बातचीत रखना चाहिए, बहुत ज्यादा एक दूसरे से कॉम्पिटिशन की भावना नहीं रखनी चाहिए। टाइम योर कमेंट्स, कब क्या किसे बोलना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कन्वर्सेशन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। एंड F फोकस ऑन बिहेवियर नॉट ऑन पर्सनालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे, मतलब उसके एक व्यक्ति के व्यवहार पे ना जाके उस व्यक्ति का ओहदा क्या है उसके बारे में लोग ज्यादा सोचते हैं। अगर मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा पर्सनैलिटी है उनका, बहुत रिच है, बहुत ये है, लेकिन वो व्यवहार कुशल नहीं है, he or she is not good in front of the people, then we should not give more emphasis on those kind of the people. तो उनका व्यवहार, चाहे वो किस पर्सनैलिटी उसकी कैसी भी हो, वो व्यवहार कुशल है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन अनकवर हिडन फीलिंग्स। आपकी जो हिडन फीलिंग्स है उसको बोलना चाहिए, आपके बॉस के सामने, आपके परिवार के सामने, जहां पे भी आप बोलना चाहते हैं, मित्र के सामने। छिपा के कोई भी चीज मत रखना। लिसन फॉर फीडबैक, ऑलवेज वी शुड बी ओपन। जैसे अब इसके बाद मैं फीडबैक लेना चाहूंगा, फीडबैक होना भी चाहिए और सुनना चाहिए। क्रिटिसिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अब एक ही चीज मैं बताऊंगा कि दो उदाहरण बताऊंगा मैं, आपको बोलना चाहूंगा। आप लाइक माइंडेड, दो टाइप के जनरली आदमी पाए जाते हैं। प्रायः इंसान जो होता है दो टाइप का होता है। किनके सराउंडिंग रहना चाहता है? एक लाइक माइंडेड और एक राइट माइंडेड। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? राइट और लाइक। लाइक माइंडेड मतलब मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद है जिनको मैं पसंद करता हूं, और जो मुझे पसंद करते हैं और जो मेरे अनुसार बात करते हैं, जो मुझे अपीज करने की कोशिश करते हैं, मेरा सब कुछ सुनते हैं,
है ना, तो मैं वहीं पे रह के कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करता हूँ, क्योंकि वो मुझे मानते हैं, मुझे जानते हैं, मुझे क्रॉस नहीं करते हैं। क्रॉस करना मतलब क्रॉस आर्गुमेंट नहीं करते हैं। लाइक माइंडेड बीच रहने वालों की एक कैटेगरी होती है राइट माइंडेड पीपल। Right minded people means we should say that the people, those who cross you, always they come with some conversation, some argument. सही आर्गुमेंट को बोलने की क्षमता रखना, हमारे बीच ऐसे लोगों की उपलब्धता होनी चाहिए। अगर ऐसे लोग उपलब्ध होंगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। जब लाइक माइंडेड लोग होंगे तो आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आपको कभी आर्गुमेंट नहीं करेंगे, आपसे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। राइट माइंडेड पीपल जो होगा आपसे क्रॉस करेगा, आर्गुमेंट करेगा, तो इन दैट वे he or she will help you to develop in your life. And we should be, it depends on individual. आप लाइक माइंडेड कैटेगरी में रहना चाहते हो कि राइट माइंडेड कैटेगरी में रहना चाहते हो। अब जब आप लाइक माइंडेड में होते हैं तो आपका ईगो बढ़ता है। ईगो कैसे बढ़ेगा? 5 लोग मेरे साथ ऐसे हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे मेरी बात हर चीज मानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं जो बोलता हूँ सब सही है, मेरा नॉलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि यस सर यस सर यस सर यस सर बोलने वाले बहुत लोग होते हैं ना, पसंद करते हैं। आप सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन राइट माइंडेड पीपल जो होंगे, हमेशा हमको राइट माइंडेड पीपल्स को भी अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने 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 टीम में, अपने इसमें रखना चाहिए। वो आपको बताएंगे आप सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से अपील है कि विच काइंड ऑफ द पीपल यू वांट टू कीप एंड सराउंडेड बाय इज राइट और लाइक, इट्स अप टू इंडिविजुअल्स, बट I should say that we should always try to surrounded by the right mind people instead of like-minded people. Okay? In that way you can have a good understanding and you can improve yourself, growth होगा आपका। ये आपका एक ग्राफ बना है जिसमें कि मीडियम्स हैं जो कन्वर्सेशंस के, स्पीकिंग है, आपका लिसनिंग है, आपका रीडिंग है, आपका राइटिंग है, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है देखिए। लिसनिंग 45%, स्पीकिंग 30%, रीडिंग 16% एंड राइटिंग 9%। इन दैट वे वी आर कम्युनिकेटिंग इन आवर सोसाइटी, इन आवर सराउंडिंग्स। देन नेक्स्ट आता है बहुत टाइम मैनेजमेंट। इसका भी एक अहम इंपॉर्टेंट रोल है टाइम मैनेजमेंट। सब लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम की कमी है। टाइम की कमी नहीं है, टाइम पहले अनादिकाल से 24 आवर्स का टाइम है, सिर्फ आपको मैनेजमेंट नहीं आता टाइम का, उसकी कमी है। ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना है इसको आपको देखना होगा। द वे यू मैनेज योर टाइम कैन इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ द डे दैट यू विल हैव। ठीक है, आपको हर चीज चॉकआउट होनी चाहिए आपकी, टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इसके आई एम इन द मिडिल ऑफ द समथिंग नाउ, कटिंग टाइम शॉर्ट। ठीक है, स्टार्ट विथ आई ओनली हैव 5 मिनट्स, यू कैन ऑलवेज एक्सटेंड दिस। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए 5 ही मिनट है। स्टैंड अप, स्ट्रोल टू द डोर, कॉम्प्लीमेंट, थैंक, shake hands, clock watching. So in that way you can go ahead and you should be vigilant towards your time. Then आपके लाइफ में अगर टाइम मैनेजमेंट होगा प्रॉपर, सब कुछ चॉक आउट कर लीजिए, टू डू लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद उसको आगे कैसे करना है, तो आप स्टे ऑर्गेनाइज्ड होंगे, आपकी सारी चीजें ऑर्गेनाइज होंगी, प्रेफरेंसेस क्या होंगे आपके काम के, उसके बाद क्या होगी आपकी पर्सनैलिटी, क्या होगी इम्प्रूव्ड पर्सनल लाइफ। इससे क्या होगा देखो, टाइम मैनेजमेंट का क्या इम्पैक्ट है। टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू अ गुड ऑर्गेनाइजेशन amidst of your work, and good organization of your work leads to the personality. You have to मल्टीटास्किंग होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, अभी जैसे जैसे आप बड़े पदों में जाएंगे आपको टाइम की कमी लगेगी, तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू वर्क इन अ बिग मींस discharge your duty as a in a big post. So in this way you can manage your time. You should ask some questions. What is the goal I am trying to accomplish? You should always ask. And what is the deadline for that goal? You must keep in your mind. And what are the outcomes of not achieving the deadline? मतलब क्या होगा अगर मैं डेडलाइन पे काम नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसे करके आप अपने सारे क्वेश्चंस, अपने 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 सारे टास्क को अगर ऐसे क्वेश्चन से आप पूछेंगे, आपको डेफिनेटली पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको कितना टाइम देना है। अगर इस टाइम को मैं अगर डेडलाइन पे नहीं कर पाऊंगा इस टास्क को, तो क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। इन दैट वे यू कैन ऑर्गेनाइज एंड यू कैन मैनेज योर टाइम। वी शुड ऑलवेज ask this kind of questions and try to chalk out our dedicated time plan for the given task. This is a matrix. I think it has a 4 quadrant time management matrix.
जो है, ठीक है, some will be popular, important नहीं है, लेकिन sometime on that. And this one, last one is what? Not important, not urgent. बहुत ज्यादा excessive TV, games, mobile, social media, in now. हेलो, You are audible, sir, now. आप लोग मुझे Hello. ओके 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 ओके, थैंक यू. प्लीज गिव मी द परमिशन टू प्रेजेंट, शेयर स्क्रीन. Thank you. I got the permission. Then okay, मैम, मुझे लगता है मेरी स्क्रीन भी आपको विजिबल होगी. No, sir. अभी देख नहीं पा दिख रहे रही हैं? है, अभी हाँ? अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है. Screen नहीं दिख रही, sir. ये थोड़ा जो इंटरनेट लैग होगा ना, उस कारण ये प्रॉब्लम आ रही है. Okay. Now it is visible, sir. ओके ओके, थैंक यू. तो मैं जो बात कर रहा था बिफोर डिस्कनेक्शन, दिस वाज रीजन कि हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए. प्रॉब्लम कैसे, आप क्रिएटिव कैसे होंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे क्रिएट करेंगे. हमेशा प्रोएक्टिव होना चाहिए. आप अपनी क्षमता की काम करने की, एक्टिविटी किसी भी टास्क को लेने की कोशिश करिए. बीइंग विद द एंड इन द माइंड. जरूर आपका काम आप स्टार्ट करेंगे तो एंड भी होगा. ये एटीट्यूड होना चाहिए. पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो प्रायोरिटी तो पहले करें. थिंक विन विन. सब विन विन का मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी टास्क को लिया और मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट एबल टू, नहीं बोलते हैं कि अगर काम करोगे तो कुछ सीखोगे या फिर सफल होगे, तो वही विन विन सिचुएशन है. कुछ ना कुछ मिलेगा आपको. सीक फर्स्ट टू बी अंडरस्टैंडिंग, देन टू बी अंडरस्टैंड. सबसे पहले समझना, फिर दूसरों को समझाना. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एंड शार्पन द शॉ, सिनर्जाइज. रिलेशनशिप बहुत होना चाहिए. आपके टूल्स एंड टेक्निक्स जो यूज होनी है उस प्रॉब्लम वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉब्लम्स, क्रिएटिविटी क्या है? Creativity and problem solving skills are highly valued because they are hard to develop. There are many people who believe that creative thinkers are born, not made. Think about that. Underline this one. There are many people who believe that creative thinkers are born, not made. And there are certainly some people who find these skills much easier. But like other skills, you can develop them if you want to do so. And our pages on these topics will give you more ideas about how to do this. Means don't think so that कोई भी चीज किसी कोई भी पैदा होके नहीं सीखा है, पैदा होके कुछ नहीं लाया है, सिर्फ प्रैक्टिस करके ही बनाया है. तो आपका एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखिए. आपके पास छात्र आते हैं, कुछ समस्या बताते हैं, उनको मतलब उनके प्रॉब्लम को कैसे हम किस हद तक जाके अपनी लिमिटेशंस के साथ कैसे सॉर्ट आउट करेंगे. That is problem solving skills. And at a time, same time, you must have the creative. Then creative person can also give the alternatives for the problems. That's why the creative and problem solving goes one and one. Then acting as a team player. Great. टीम प्लेयर होना ही चाहिए.
A team player is a reliable person, someone who can count on. He gets work done and does his fair share to work hard and meet commitments. Qualities of the team players are demonstrate reliability, communicate constructively, listen actively, participates actively, share openly and willingly. मतलब जो चीज है उसको बताइए, ताकत से बताइए. Cooperates and help to each other. Exhibit flexibility. टीम प्लेयर क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है. ये नहीं बोलता कि मैं ये नहीं करूंगा, सिर्फ यही करूंगा. Commitment, work as a problem solver, treats other respectively. So these are the some skills we should try to inculcate if we are working in a team. Apart from that, we should always give more emphasis on these kind of the skills to become a good and successful person and human being in life. Just we should not think that we should be successful in organizations. We should always thinks to become a good human being. Then in this way, these skills will help you to become a good human being. Then what is the leadership? Teamwork. Like leadership, good teamwork involves a combination of other soft skills. Working in a team towards a common goal requires intuition and good team players are perspective as well as receptive to the needs and responsibilities of the others. तो मेरा कहने का संक्षेप में मैं ये बोलूंगा कि अगर आप टीम में हैं तो अपने टीम लीडर का सुनिए, अपनी बात रखने की क्षमता भी रखिए, और जो ये क्वालिटीज लिखी हुई है यहाँ पे, मुझे लगता है ये स्लाइड्स जो है, मैं अपना जो पीपीटी है मैंने ऑर्गेनाइजर्स को शेयर किया है, और मैं ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको ये जो स्लाइड्स हैं इनको जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको उपलब्ध कराया जाए ताकि उनके पास ये रहे, और जब वो उनको चाहिए हो रेफरेंस के लिए तो दे कैन गो थ्रू दिस स्लाइड्स एंड दे कैन टेक द रेफरेंसेस. ठीक है, तो आप लोग को जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो आपको ये स्लाइड्स प्रोवाइड करेगी, मैं उनसे निवेदन करता हूं. फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, सेल्फ कॉन्फिडेंस. बिलीव इन योरसेल्फ एंड अदर्स विल टू. आप अपने आप में भरोसा रखिए. किसी भी काम के लिए, किसी भी क्षमता के लिए आपको अपने आप में विश्वास रखना बहुत जरूरी है. एंड बी पेशेंस विथ योरसेल्फ. धैर्य का जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. घबराइए मत, परेशान मत होइए. बहुत सारी समस्याएं आएंगी. देखिए कि आज जैसे बड़े बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, उनका धैर्य बहुत ज्यादा होता है, और एक्सपीरियंस और उम्र के साथ ही पेशेंस लेवल भी बढ़ता है. इसलिए हमको पेशेंस रखना चाहिए. फाइंड अ मेंटर. एक ऐसा गुरु बनाइए जो आपको बहुत अच्छा बता सके, आपको ट्रेनिंग दे सके. तो ये भी बहुत जरूरी है जीवन में. बी ओपन टू न्यू आइडियाज. आपकी मीटिंग कहीं पे हो रही है, जो भी हो रहा है, आप अपने आइडियाज रखने के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और अपने आइडियाज को आप रखने की क्षमता रखिए. हम्बली रखिए. कहीं पे भी बोलना है, पोलाइट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, लेकिन बोलना जरूरी होता है. डरना ठीक नहीं है. समय और परिस्थितियों के हिसाब से आपको अपनी बात रखने की क्षमता ही आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको इंप्रूव करेगा. सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको ये क्षमता देगा. बी पॉजिटिव. पॉजिटिव पीपल्स की हमेशा सुनी जाती है. नेवर एक्सेप्ट द अनएक्सेप्टेबल. जैसा मैंने पहले कहा था, जो ऐसी चीजें, जैसे हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, कुछ ऐसी कमेटीज हैं जहाँ पे हम काम करते हैं, और हमें कई ऐसी चीजें होती हैं कि एक आप जूनियर मेंबर हो उस कमेटी में, और आपको अनएक्सेप्टेबल है वो चीज, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि मेरे को तो उचित नहीं लग रहा है, तो भी आप कभी कभी बाध्य होते हैं अपने आप से कि आप साइन करते हैं और आप अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं. तो ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण होता है. आप अपनी बातों को पूरा रखिए, और जो नियम कानून कायदे जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आप जरूर उसमें अपनी बात रखिए. और जब साइन करना हो तो आप एक डिसेंट नोट लिखिए, है ना. तो ये एक तरीका है अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाने की. यही चीजें आपको आगे ले जाएंगी. आपके जो टीम्स होंगे, आपके ऑफिसर्स होंगे, वो भी समझेंगे कि नहीं, he has some potential, he has confidence, he is asking, telling this thing. Be well groomed, cherish your accomplishment. अपनी उपलब्धियों को हमेशा चेरिश करना चाहिए, मनाना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए. तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस सॉफ्ट स्किल है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि लोग इसमें भागते हैं. एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म. कभी आप मत सोचिए कि आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है उससे आपका नुकसान है. आपको हमेशा वेलकम करना चाहिए ऐसे लोगों का जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और सुनिए, जानिए वो क्या क्रिटिसाइज कर रहा है, एनालाइज करिए, और वही आपका बहुत बड़ा सुधारक है जीवन में. मैं बोला ना, राइट माइंडेड पीपल क्रिटिसाइज करेंगे आपको, काउंटर करेंगे आपको, ठीक है, और आपको बताएंगे, सही सलाह देंगे. लेकिन जो लाइक माइंडेड होंगे चुपचाप सुनते जाएंगे, आपको ग्रोथ ही नहीं होने देंगे कभी.
एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली कैन बी डन इन द 4 स्टेप। लिसन ओपनली, सबका सुनना चाहिए बिल्कुल हमेशा। That will improve yourself. You are open to take and accept criticism, then you will improve in your life. Then this is the flexibility and adaptability, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे इसमें अभी जो हमारे हमारी flexibility adopt करने की कोशिश की आपको बहुत दिखाएगा। This is the very important thing। प्रोसेस होता है, हम बहुत घबराते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। हमको कैसे हैंडल करना है वर्क। Shukla sir, are you here? Am I audible to you, sir? Okay. आवाज आप लोग को आ पा रही है क्या? फिर से मैं शायद डिस्कनेक्ट हो सर, गया था। जी जी, अभी आ रही है सर, अब आ रही है सर। जी जी हाँ, जी, कंटिन्यू कीजिए सर। ओके ओके, थैंक यू। फिर से मुझे स्क्रीनशॉट का थोड़ा, स्क्रीन शेयर का थोड़ा सा एक्सेस दीजिएगा, राइट दीजिएगा। Yes sir, you're allowed, sir. Sorry. Okay, thank you. Sorry for this interruption. Okay, that is beyond the control. And I'm very much sorry because I also feel that this is the drawback of our online classes. Okay, please bear with this. This interrupts the flow also, है? But what we can do, we should go with this pace only. Okay. My screen is, I think, visible to you people now, na? Yes sir. Okay, thank you. तो मैं बात कर रहा था कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो कैसे काम करना है। एक काम को खत्म करिए, तभी दूसरे काम को स्टार्ट करिए, प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए, तभी जाके आपके पास प्रेशर नहीं होगा। और रिलैक्स रहने की भी बहुत जरूरत है। मतलब आप गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट विल ओनली मेक यू पैनिक। बहुत ज्यादा दबाव मत समझिए, ठीक है? रिलैक्स रहिए। डोंट पुश योरसेल्फ टू फिनिश योर टास्क इफ यू आर टू टायर्ड। बहुत थके हुए हैं, रात को सो नहीं रहे हैं, बहुत दिमाग में उलझन है, तो आपको उस समय में थोड़ा सा रिलैक्स करने की, प्रॉपर ब्रीथ करिए, एक्सरसाइज करिए, अपने आप को आराम दीजिए, फिर काम करिए। और इस तरीके से आप वर्क प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। तो ये भी आपका, और बहुत जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास तो बहुत ज्यादा लोड होता है, इसी तरीके से वो अपने वर्क को बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। धीरे धीरे समय के साथ, अनुभव के साथ ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन हमको जिस परिस्थितियों में भी हम हैं, वहां पे भी हमारे प्रेशर्स को, छोटे लेवल में छोटे प्रेशर्स को हैंडल करने में कामयाब नहीं होते, परेशान होने लगते हैं। तो हमको इस पर काम करना बहुत जरूरी है। डिसीजन मेकिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स है। आपने प्रायः पाया होगा कि कई सारे लोग डिसीजन लेते ही नहीं है, लेकिन sometimes the actual decision doesn't even matter. What matters is that you have made one and moved on. आप डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए। मुझे कहाँ एडमिशन लेना है, नहीं लेना है, उसी में उलझन मत बना के रखिए। कई सारे छात्र जीवन में ऐसा होता है। एटलीस्ट डिसीजन लेना आपके सॉफ्ट स्किल की क्षमता है। प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे तो आपकी स्किल्स, आपकी ये स्किल है एक। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स। सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं अपने आप को मोटिवेट करना है काम करने के लिए।
और सरकारी संस्थाओं में तो इसकी बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि आपको रिवॉर्डरी और समथिंग विल नॉट एबल टू डू। कॉम्पिटिटिवनेस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में प्रायः प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कम पाया जाता है, लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड, आपको आगे रह के प्रोएक्टिव रहना है, अपने आप को खुद बोलना है, नो आई विल डू दिस थिंग, थैंक यू, अपने आप की अपनी पीठ थपथपानी, गुड, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। Don't expect from your officers or subordinates they'll come and give you motivation, then you'll do that thing. People who are self-motivated get on by themselves. They don't need close supervision and they are good to work with because they are generally positive about life and can be counted upon to keep going. I'll quote one example here. मैं एक गार्डन प्रभारी था पहले, तो मेरे पास एक माली था और मैंने उससे देखा और सीखा। उसका जो टाइम था, मतलब एप्रिशिएबल था वो बंदा, आज भी है। लोग आज भी मैं उसकी मिसाल देता हूं कि वो अपने टाइम से 9:30 बजे आएगा। आप उसको कुछ मत बोलिए, आप उसको कुछ सुपरवाइज मत करिए, 9:30 से लेके 4-5 बजे तक जो भी उसका काम है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल, मतलब आप गार्डन को देख के खुश हो जाएगा और उसको कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप कभी नहीं पाएंगे आधे घंटे का लंच है, 45 मिनट्स का लंच है, तो अपने आप वो आधे घंटे और 45, देखिए उस लेवल पे उसका जो एक मोटिवेशन है और बोल सकते हैं डिसिप्लिन है, एक सॉफ्ट स्किल, आई कैन से दैट, कि वर्क एथिक्स क्या होना चाहिए। पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसको वर्क एथिक्स बहुत हाई है और सेल्फ मोटिवेटेड है। वो इतना भी नहीं जाता कि उसको बहुत ज्यादा उसमें रिवॉर्ड मिलना है, कुछ मिलना है, बहुत बढ़िया काम कर, ऐसे लोग प्रायः पाए जाते हैं। और एक हमारे एक समाज के लिए एक आप बोल सकते हैं कि रोल मॉडल भी होते हैं, हमको उनसे भी सीखना चाहिए। जरूरी नहीं हम सीखें अपने से ऊंचे लोगों से, बड़े लोगों से, छोटे लोगों को भी ऑब्जर्व करके उनके स्टाइल को, उनके काम को, उनके बात करने के तरीकों को ऑब्जर्व करना चाहिए और सीखना चाहिए और अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। लीडरशिप is also one of the important soft skill you can show even if you are not directly managing others. Okay, leadership can be thought of as a collection of various other soft skills such as general positive attitude and outlook, the ability of communicate effectively, and an aptitude for both self-motivating and motivating others. This is important aspects. It itself takes a lot of time to explain the leadership. Just here I have given the time of 1.5 hours to complete 1 hour for the session and some minutes for the question answer sessions. That's why I kept this short, and if I'll get an opportunity again, then definitely I'll take one lecture or one kind of the soft skills. In that way we can work on that. Then leadership is all about transforming vision into reality and putting your ideas, beliefs and values into action. It is about having a vision backed by your conviction. Add to this the attribute of resilience. Resilience मतलब क्या होता है? बाउंस बैक करना। मान लीजिए आपको क्षमता, आप फेल हो गए, कहीं फेल होकर लोग बैठ जाते हैं, बैठना नहीं है। We should be resilient. We should try to bounce back. How we can cope up with that failure? Then that should be in our mind, and you can be what you want to be and achieve what you want to achieve. In that way, leadership is what? Transforming vision. जो आपके दिमाग में है उसको देखेंगे आप। बड़ा लीडर जो होता है उसके आइडियाज को रियलिटी पे लाता है। तो ये कुछ छोटा सा कोट था, तो ये लीडरशिप क्वालिटीज हैं। एंड नाउ after understanding all the important things, then now I'll give some light on this, how you can improve or self management your skills, soft skills, how you can manage your soft skills. Okay, then there are some list of the questions I have brought for you people, and you people can take these questions from the organizers. They'll share the slide, and then you should pose these questions to yourself. Where are you and how you can improve? Just take an awareness level, self awareness. This is also one kind of the thing, whether you are aware why you are lazy. If you feel that if you are lazy, you are not quick, then why? Chalk down the answer, write down the points, think about that, why I am lazy. Okay, then if you find out the answer, then work on that, then definitely you'll improve on this. What will make you move without accepting a reward? ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करती हैं रिवॉर्ड ना मिलने पर भी? है क्या ऐसी चीजें? क्या कभी आपने सोचा? हर इंसान यही सोचता है, नहीं मेरे को रिवॉर्ड मिलना है, मैं ये काम क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा इससे? सोच होती है एक नॉर्मल इंसान की। तो इससे अलग बनना है तो इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को आप वर्कआउट करिएगा। हु और व्हाट इंस्पायर्स यू? आप किससे प्रभावित होते हैं?
व्हाट मेक्स यू एंग्री, आपको गुस्सा क्यों आता है, उसमें लिस्टिंग करिए किस किस चीजों से आपको गुस्सा आता है और उनको लिखिए और उसमें काम करिए और आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। ज्यादा गुस्सा आना या गुस्सा आना ही ठीक चीज नहीं है। व्हेन डू यू रिमेन काम एंड पीसफुल, आप कब बिल्कुल शांत और काम और कूल रहते हैं, वैसी सिचुएशंस को इनकलकेट करना चाहिए, वैसे के बारे में सोचना चाहिए। वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ, आप किससे डरते हैं। व्हेन टू फील एम्बैरेस्ड, आपको शर्म कब आती है, कब आप एम्बैरेस्ड फील करते हैं, कैसी सिचुएशंस पे। अगर आप टास्क नहीं कर पाते, आपके बॉस जब आपको डांटते हैं तो आप उनको मौका मत दीजिए डांटने का, वही आपका। व्हाट आर यू ड्राइविंग फोर्सेस, व्हेन यू आर जेलस ऑफ समवन, आपको जलन की भावना दूसरों से होती है क्या, अगर होती है तो कब, और क्या ये होनी चाहिए, और अगर नहीं होनी चाहिए तो क्या आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। व्हेन डू यू अप्रिशिएट समवन, मैंने प्रायः पाया और बहुत मतलब आपने देखा होगा बहुत लोग दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। क्या आप करते हैं, क्या उस कैटेगरी में है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर किसी ने कुछ अचीव किया है आप जरूर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करिए, अप्रिशिएट करिए। ये भी एक आपके अंदर बिहेवियरल चेंजेस लाएगा, आपके सॉफ्ट स्किल्स को चेंज करेगा और आप एक अद्भुत इंसान, मतलब जो आज आप हैं वो आप दूसरे होंगे अगर इन पर आप काम करेंगे। अब दूसरा देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में आप अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आर यू कॉन्फिडेंट ऑल द टाइम, मैंने अपन देखते हैं प्रायः लोग कॉन्फिडेंस की कमी होती है। क्या आपको कॉन्फिडेंस होता है, अगर नहीं होता तो कब नहीं होता, और कब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। व्हाट यू लैक इन अ कॉन्फिडेंस, व्हेन, कब आपको कॉन्फिडेंस की कमी होती है। क्या बॉस खड़ा रहता है तो आप डरने लगते हैं, या फिर आप अपनी वाइफ से डरते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना। कॉन्फिडेंस किसके सामने आपको प्रॉब्लम होती है और क्यों होती है, इसको आप ही आपकी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिएगा और आंसर लिखिएगा, क्योंकि मैं इस पे काम नहीं कर पाऊंगा। मैं सब आपको सिर्फ 2-4 क्वेश्चंस के थ्रू आपको काम करवाना चाहता हूं, इसलिए क्वेश्चंस मैंने लाया है। डू यू बिलीव इन यू दैट यू हैव स्ट्रेंथ एंड पावर विद इन यू टू अचीव एनीथिंग, क्या आप अपने आप में इतना विश्वास रखते हैं और शक्ति रखते हैं कि आपको जो काम दिया जाएगा आप जो कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की कैटेगरी में आएंगे, अगर ऐसा नहीं है तो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब माइंडसेट के बारे में, नेगेटिव एंड पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में मैंने बात किया। आपका माइंडसेट कैसा है, आप इस प्रश्न इन क्वेश्चंस को अपने आप से आप पूछेंगे तो आपको इस बारे में भी पता चलेगा। डू यू हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट, इज योर माइंड ऑलवेज लुक्स एट प्रॉब्लम्स और कम्स आउट विद सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। अगर आप हमेशा प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो आप नेगेटिव माइंडसेट के होंगे, अगर आप सॉल्यूशंस को देखते हैं, सॉल्यूशंस के साथ आते हैं तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के होंगे। ऐसा क्वेश्चंस अपने आप को पूछना है। इस क्लास के बाद मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि ये जो लास्ट 3 स्लाइड्स हैं उसमें आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछेंगे और अपने आप में जो मैंने बताया सॉफ्ट स्किल्स, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं जरूर सोचिएगा। तभी इसका प्रभाव, इस लेक्चर का प्रभाव, देखिए जो भी टेक्निकल स्किल्स थे, जो भी थे वो जरूरी हैं जीवन में, उनके साथ साथ ये सारी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपको सफलता, जीवन में खुशहाली और एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग आप बनना चाहते हैं। तो डू हैव अ रिजिड फिक्स्ड माइंडसेट और फ्लेक्सिबल एंड ग्रोथ माइंडसेट। कई लोग नहीं होते, मानना नहीं है तो नहीं मानना है, वैसा नहीं होना है। इज योर माइंडसेट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। यस, आपको अवसर अगर सीखने का मिल रहा है तो आप उसको लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, आप अपने आप से पूछिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप माइंडसेट के बारे में भी काम कर सकते हैं। जैसे इमोशनल बैलेंस, हाउ गुड इज योर इमोशनल लिटरेसी एंड द लेवल ऑफ योर इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि जो हमारे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं हमको इमोशनल बैलेंस बनाने में कामयाब करते हैं और मजबूत करते हैं। आर यू एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, कई लोग देखिएगा इमोशंस को, गुस्से को नहीं रोक पाते। इमोशंस, एंगर इज ऑल्सो इमोशन, लव इज ऑल्सो इमोशन, तो कंट्रोल कर पाते हैं। गुस्सा, जैसे बहुत सारी भीड़ आ गई, आप किसी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, बात तेज करने लगे, आपका पिच बढ़ गया, तो कैसे उसमें काम करना है। डू यू फील वीक बिफोर सम पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं जिसके सामने आप कमजोर महसूस करते हैं, अगर है तो कौन है और क्यों आप महसूस करते हैं, प्रश्न पूछिएगा आप अपने आप से और काम करिएगा कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ। डू यू फील इंटिमेटेड व्हेन यू मीट पीपल हु आर मोर पावरफुल और स्ट्रॉन्गर और रिचर। कैन यू मैनेज योर नेगेटिव इमोशंस सच एज एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड हार्ट। ये बहुत सारी, क्या आप इसको मैनेज कर पाते हैं, गुस्से को, फ्रस्ट्रेशंस को, किसी को दुख पहुंचाने को, इसमें हमको काम करना चाहिए। कैन यू थिंक रैशनली एंड मेक ऑब्जेक्टिव डिसीजंस व्हेन यू आर कंज्यूम्ड विथ योर इमोशंस, मतलब आप क्या बुद्धिमानी पूर्ण,
सब ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप डिसीजंस लेते हैं, इमोशंस को अपने डिसीजंस में कभी मत लाइएगा, सोचिए उसको। आर यू अफ्रेड ऑफ शेयरिंग योर इनर मोस्ट फीलिंग्स, आप क्या डरते हैं अपनी फीलिंग को किसी के साथ शेयर करने के लिए, इस बारे में भी हमको सोचना है, और ये आपकी इमोशन बैलेंस को आगे बढ़ाएगा। हैंडलिंग स्ट्रेस, स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे स्ट्रेस का, सॉरी फॉर दैट। डू यू रिमेन कूल, काम एंड कलेक्टेड इन एनी सिचुएशन, दैट वाज द टाइपोग्राफिकल एरर, है ना, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस वन। Are you strained when you interact with people at personal and professional level? Do you know how to come out of stressful situation? Are you aware that the less stressful you are, more productive and you will be? So these are the some questions I have brought for you people. जैसे आप फेल होते हैं तो आप क्या करते हैं फेल होने पे? तो do you have the resilience to bounce back after a setback? क्या आप में वो क्षमता है फेल होने के बाद बैठ जाते हैं या फिर से कोशिश करते हैं उसको करने की? Do you have the persistence and perseverance? Perseverance समझते हैं, उसी काम को करने की क्षमता, बार बार अचीव करने की क्षमता फेल होने के बाद भी। परसिवरेंस ही लोगों को आगे ले जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे आईएएस आईपीएस 5-5 4-4 3-3 अटेम्प्ट देने के बाद पास होते हैं, तो परसिवरेंस है। अभी रिसेंटली सीए का एक रिजल्ट आया, उसमें मैंने देखा एक सोशल मीडिया पे एक बंदा था 2017 से सीए की परीक्षा दे रहा था और 2022 में 15 साल उसने सीए की परीक्षा दी और एक एग्जाम को 5-5 बार 6-6 बार 4-4 बार फेल हुआ, है ना। और आखिर उसका परसिवरेंस मतलब उसी काम को काम करने की क्षमता, मतलब किसी चीज को पाने की जो आपकी इच्छा शक्ति है वो है आपका परसिवरेंस। कभी गिव अप मत करिए, सोचिए उस विषय में। डू हैव द विल पावर एंड डिटर्मिनेशन टू वर्क विद द सेम एनर्जी टिल योर मिशन इज अकम्प्लिश्ड। कई लोग क्या होते हैं, काम को स्टार्ट करने में बहुत एनर्जी लगाते हैं, फिर जब काम डिक्लाइन और टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स जाता है तो वहां पे डाउन होने लगते हैं, तो वो क्षमता आपको कमजोर करती है। ठीक है, तो इस तरीके से पेशेंस, टॉलरेंस एंड ट्रस्टवर्थीनेस के लिए भी मैं सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं और आप इन क्वेश्चंस को अपने आप से पूछिए। एक क्वेश्चन जैसे मैं बोलता हूं, कैन पीपल ट्रस्ट यू, आर यू रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड, डू यू स्पीक द ट्रूथ और ओकेजनली लाइज। तो पूछिए आप अपने आप से, और आप पूछेंगे तो आपको जरूर आपके आंसर्स मिलेंगे और आपको स्कोप मिलेगा कहां आप काम कर सकते हैं। डू यू हैव अ हाई लेवल ऑफ टॉलरेंस, आर यू इंटॉलरेंट ऑफ पीपल हुज क्वालिटीज अनॉय यू। क्या नहीं होता जिसको आप पसंद नहीं करते उसके टूवर्ड्स आपको गुस्सा आने लगता है, ऐसे हैं क्या आप? अगर हैं तो नहीं होना चाहिए। डू यू एक्ट एथिकली, डू यू हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। Please ask these questions and come up with your answers. Then these are the some things, and here also you can, the list of the questions are there. Is your mind open while listening to controversial ideas? Controversial ideas को आप कैसे सुनते हैं? Do you understand people correctly? Do you raise your life to higher spiritual level? Do people look up as their role model? तो ये सारे क्वेश्चंस, कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने बनाया और यहाँ पे लाया हूं। तो इसमें आप अगर अपने आप को इस क्लास के बाद जो मैंने आपको कॉमन सॉफ्ट स्किल्स बताया और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कम से कम 30 से 35 क्वेश्चंस ये हैं अलग अलग एरिया पे, आप उसको अपने आप से पूछिएगा और चॉक डाउन करिएगा और देखिएगा कि आप कहाँ पे हैं और कैसे इंप्रूव करेंगे। तो इन दिस वे this lecture will help you to improve your soft skills and manage yourself. Thank you very much once again. Now here I am going to stop my today's I am over with my slides and I am over with my presentation. Thank you one and all for listening patiently और आप अपने समय देने के लिए। और मुझे उम्मीद करता हूं कि मैं एक ऐसी कॉमन चीजों को लेके आया यहाँ पे जिसके कारण आप इसको सीखेंगे और जरूर अगर आप इसको वृद्ध करना चाहेंगे, अपना बढ़ाना चाहेंगे तो जरूर इसमें कहीं ना कहीं आपको इसमें आपकी सहायता मिलेगी। थैंक यू ऑल, थैंक यू वन एंड ऑल एंड थैंक यू टू ऑर्गेनाइजर अगेन वंस अगेन, थैंक यू टू ऑल ईच एंड। थैंक यू शुक्ला जी, बहुत अच्छा लेक्चर आपने दिया, मैं सुन रहा था पूरा। और आप आईटी डिपार्टमेंट में, कौन से डिपार्टमेंट में सर? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में। सर मैं तो पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मौका दिया मुझे और आज मैं इस आभासी माध्यम से आज जुड़ रहा हूं और मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हूँ अभी वर्तमान में, सीपी देवांगन के साथ में। जी जी, और 3 वर्षों के लिए मैं अभी आईआईटी बॉम्बे में था, वहां से मैंने पीएचडी क्यूआईपी योजना के तहत खत्म करके आया हूँ। और आप नेटवर्क फिर बंद हो गया क्या? ने मौका दिया और
नहीं सर, बहुत बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन सुन रहा था। ऑडियंस जो पार्टिसिपेंट कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेरी वगैरह है तो पूछ सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कोई प्रश्न है क्या? एनी क्वेश्चन फ्रॉम पार्टिसिपेंट साइड? सर वैसे आपको प्रेजेंटेशन काफी डॉक्टर राजेंद्र भूतदेव जी ने लिखा है कि प्रस्तुति पत्रक स्लाइड अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषा में हो तो ज्यादा प्रेरणास्पद रहेगा। तो आजकल जी सर। आजकल तो राजेंद्र जी वो ट्रांसलेटर रहता है ना, उसमें ट्रांसलेट कर लीजिएगा पूरी स्लाइड को, स्लाइड आपको मिल जाएगी। नहीं, बात ये नहीं है ट्रांसलेशन करनी। मैंने लिखा प्रेरणादायक रहेगा, तो क्या बाकी लोग भी अनेक कारणों से अनेक बार नहीं बोल पाते, तो चूंकि आपने अच्छे से बोला, और जब दोनों भाषा में अपन लिखते हैं तो सारे लोगों को लगता है। अगर केवल हिंदी बोलते हैं तो बहुत लोगों को हिंदी नहीं आता है। लेकिन राजेंद्र जी आपको मैं बताऊं कि आप जो हिंदी भाषा का लिए आप जो बोल रहे हैं, वाकई में ये बहुत अच्छी चीज है। और कई लोग बोलते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डिफिकल्टी या वो चीज समझने की होती है, क्योंकि हमारी अपनी भाषा तो है ही नहीं वो अंग्रेजी। तो बेहतर है कि भले इंजीनियरिंग के हुए आप सब लोग, तो उसके बावजूद भी बेटर है कि अभी पूरा AICTE है वो हिंदी ट्रांसलेशन में जा रहा है, मतलब पूरा नहीं, अपन बस प्रयास कर सकते हैं। अपन तो हिंदी के सामान्य सैनिक हैं। अपन कोशिश कर सकते हैं कि भाई जितना, जहां पर हिंदी किसी के रोजगार में बाधा नहीं बन रही है वहां तक हिंदी तो चलाएं, फिर आगे देखेंगे। क्योंकि अनेक कारणों से हम अपने बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, तो अपना हिंदी को लेके कोई आग्रह या कट्टरता नहीं है, पर जहां रोजगार में बाधा ना हो। ठीक बोल रहे। तो अब जैसे आज सर ने जो बोला मैंने पूरा सुना। लगभग मैं 40 साल से पढ़ाने के कामकाज में हूँ। कौन से कॉलेज में सर आप? मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक भोपाल में हूँ। और इसके पहले भी मैं हायर सेकेंडरी स्कूल, ट्राइबल एरिया और सब जगह मैंने काम किया है। तो इतने अच्छे तरीके से दोनों भाषाओं पे कंट्रोल रखते हुए और कंटेंट से बिल्कुल भी नहीं हटते हुए इतना श्रेष्ठ लेक्चर मैंने अपने जीवन में बहुत कम ही सुना होगा। तो बहुत अच्छा लगा। मैं इसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी चाहूंगा, तो हमारे कॉलेज के लिए भी हम रखेंगे, क्योंकि बाकी जो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर राजेंद्र जी। और आपका इनपुट मैं सराहनीय है, और कोशिश करूंगा भविष्य में कि हम उस तरह आगे बढ़ सके, क्योंकि जरूर। और मेरा स्लाइड में मेरा कांटेक्ट नंबर भी फर्स्ट स्लाइड में है, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर। देन डेफिनेटली मैं यथासंभव प्रयास करूंगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों बनाने का। मेरा उद्देश्य हिंदी के प्रति कट्टरता बिल्कुल नहीं है, पर अगर हम लोग धीरे धीरे हिंदी को स्थापित करेंगे, पर अंग्रेजी के साथ, क्योंकि हम हमारे बच्चों को केवल आदर्श बातें करके अनफिट नहीं कर सकते। अंग्रेजी के साथ अगर हिंदी को हम जोड़ेंगे तो AICTE हो, चाहे अभी केंद्र सरकार हो, या चाहे जो भी विचारधाराएं हो, वो भी फुलफिल करेंगे और हम बच्चों को आगे भी बढ़ाएंगे। तो मेरी कोशिश रहती है हर जगह में, जितने दिन से 6 दिन से अटेंड कर रहा हूँ पूरी क्लास, शायद कुछ लोग सुनते भी होंगे, कि मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ। और ये भी बात बहुत ही सराहनीय था। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पहले मेरा माइंडसेट था इंग्लिश पे ही लेने का, लेकिन जैसे मुझे इनपुट मिला कि हमको हिंदी में भी लेना है क्लास, है ना, तो मैं भी एक हिंदी भाषी छात्र रहा शुरू से ही। तो मुझे एक अच्छा अवसर मिला कि हमको कैसे, बिकॉज जनरली क्या होता है कि हम क्लास इंग्लिश पे ही लेते हैं, फिर क्योंकि हमारे यहाँ क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं बहुत सारे जो हिंदी बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, तो हमारा हिंदी में बहुत कम रहता है। फिर इस कारण आज मुझे डॉक्टर RN खरे और जो उनकी टीम अच्छा अवसर प्रदान किया, और एक प्रबुद्ध लोगों के सम्मुख मैंने अपने इस विचार को रखा है, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन, महत्व बहुत ही अद्वितीय है जीवन में। तो सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग जहां पे भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई एम ओपन ऑलवेज टू हेल्प to community, to surroundings, to people like you. Thank you very much. बिल्कुल आपको छत्तीसगढ़ था, जब मैं रायपुर और दुर्ग परीक्षा लेने भी आया करता था, राजनांदगांव। जी। और जब से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गया तो वैसा अवसर नहीं आता, पर मेरे बहुत सारे मित्र हैं वहां पर छत्तीसगढ़ में भी। तो मैं आऊंगा तो आपसे बिल्कुल मिलूंगा मैं, या हो सकता है आपसे मिलने ही आऊंगा, है ना। डायरेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई पार्टिसिपेंट कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता है? आज वो डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, श्री अवनीश कुमार शरण साहब, IAS, जो कलेक्टर थे बलरामपुर में।
बिलासपुर पार्टिसिपेंट जी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे लेक्चर होगा करीब 2:15 बजे। AICT डायरेक्टर FDC कर्नल B वेंकट साहब का पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि उनके लेक्चर को भी आप लोग जरूर सुनेंगे। तो माननीय कुलपति महोदय जी के मुख्य अतिथि रहेंगे 4 बजे। समापन समारोह इस प्रकार से होगा और उसके पूर्व जो है आपका इवैल्यूएशन टेस्ट होगा जिसमें 60% पास होना अनिवार्य है। तो चलिए शुक्ला जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आपके बारे में, एक लाइन बहुत देर सुनना चाहता था। मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी की ओर से हूँ, यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ और यहाँ प्रिंसिपल हूँ अंबिकापुर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज में। जी सर। मैं शुक्ला जी एक चीज जरूर बोल रहा था कि आप जिस तरह से प्रेजेंटेशन दे रहे थे ऐसा लग रहा था कि रियल में आपने उस चीज को अभ्यस्त है, आप उस पर आपने जिया है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि जिस तरह से मोटिवेशन था कि भाई किस तरह से आपको कॉन्फिडेंस किससे पढ़ाना चाहिए, किस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, वो रियली मतलब वंडरफुल। और मुझे लग रहा था कि सर ने इस दो चीजें हम लोग वैल्यू एजुकेशन में देखते थे कि मानव का जीवन के साथ जीना और उसके साथ अभ्यस्त होना। जी जी। मैं लग रहा था कि आप वाकई में जो चीज बोल रहे हैं आप उसमें अभ्यस्त हैं और आत्मसात करके बोल रहे हैं। तो नहीं सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे जब ऑप्शन मिला तो मैंने 2-3 ऑप्शंस बताए निर्विकार जी को, तो उन्होंने बोला सर कि आप सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे लेंगे, तो मैं हमेशा ओपन रहता हूँ एक चैलेंजेस लेके लर्निंग के लिए। तो मैं बोला क्यों नहीं लूंगा, लेट मी डू माय एक्सरसाइज। तो उन्होंने मुझे अलाउ किया और ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में आज सेशन लिया है। ह्यूमन वैल्यूज पे लिया है मैंने, आउट ऑफ द लीग। मतलब मेरा टेक्निकल पूरा ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट मेरा एरिया है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो मैं ऐसी चीजों को भी प्रोत्साहित करता हूं अपने जीवन में कि नहीं, इनका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल तो सबको पता ही होता है। तो निर्विकार जी ने मुझे बोला कि सर आप सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में ले पाएंगे क्या? बोला व्हाई नॉट भाई, आज सोर्स सब है। तो एक दिस इज एटीट्यूड, द एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड आई टुक एज अ चैलेंज एंड आई डिड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज ऑन दैट। देन आज आप लोगों के कारण यहाँ पे हूँ और भविष्य में भी ऐसा चाहूंगा कि मुझे मौका मिलता रहे और अपन आगे बढ़ते रहे, आपसे सीखने मिले सबको और हमसे आपको। धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी जी। Thank you, sir. Thank you, sir, for your session on soft skill. We all know soft skill is desirable in all profession, and for the teacher, it is required because they are role model for their students. I hope our participants enjoyed and learned the basic of soft skill. सर आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने बहुत ही प्रभावी ढंग से इसको प्रस्तुत किया सर। इसके लिए मैं AICTE, CSBTU और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जशपुर की तरफ से सर आपको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इसका वीडियो मिलेगा हमको, जो रिकॉर्डिंग किए हैं आपको मिल जाएगा ना? डेफिनेटली सर, हाँ, डेफिनेटली, श्योर श्योर। सर को Thank वीडियो you. शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल ओके बिल्कुल सर, सर जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Dear participants, we appreciate your patience learning. From the day one, you all are dedicatedly connected with this training program. I hope you have enjoyed the all sessions. The next session will be taken by Colonel B. Venkat, Director, Faculty Development Cell, AICTE New Delhi, on AICTE Quality Initiative and National Education Policy 2020. There is a break for 1 hour. The next session will be started at 2:10 p.m. We appreciate your punctuality. Thank you for your cooperation. We will meet again at 2:10 p.m. अच्छा सर, आप भी एंकरिंग अच्छी कर रहे हैं अभी। वैलिडेटरी फंक्शन, अच्छा आपका शुभ नाम क्या है? मैं भूल जाता हूँ बार बार। सर जी जी सर, संजय कुमार साहू। अच्छा, आप वोट ऑफ थैंक्स इस बार आप ही को करना है ना? चलिए सर सर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। बेदी सर ने कहा था कि क्योंकि प्रोग्राम को पूरा वैलिडिटी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, तो वोट ऑफ थैंक्स सर मनीष डोंगरे सर देंगे हमारे यहाँ से, तो उनको मैं इनवाइट करूंगा सर। अब जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट के लिए इस बार अब हमको इनवाइट मत करिएगा, वो क्योंकि इंट्रोडक्शन वगैरह दोबारा नहीं होगा, वो बहुत ब्रीफ में आप ही लोग कर दीजिएगा। वो गौतम जी को बोला हूँ, तो सभी का बहुत ब्रीफ करिएगा। और जो अभिजीत शरण साहब है उनका बायोडाटा भी नेट से निकाल लीजिए और जी सर, निकाल लिया। हाँ, वैलिडेटरी फंक्शन बायोडाटा वगैरह बहुत ब्रीफ करिएगा, है ना? जी सर। तो हमारा वेलकम स्पीच बन रहेगा, बाकी मैं उनके उसमें आऊंगा नहीं, बाकी अच्छा रहेगा। बाकी अच्छा कर रहे हैं साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ये फर्स्ट टाइम था बेदी सर ने। कौन से डिपार्टमेंट से आप? सर मैं फिजिक्स से हूँ, अप्लाइड फिजिक्स से। सर क्या हुआ कि हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल के सर हैं वो सर मास्टर थे, लेकिन वो क्योंकि प्रेजेंट नहीं हो पाए, अवेलेबल नहीं है हमारे लिए, तो सर ने फिर मुझे ये दिया मौका। और सर नहीं, आप भी मास्टर है भाई,
किसी को अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। ओके, थैंक यू। Yeah, yeah. थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.